Okay, hello everyone. We will start in 1 to 3 minutes. Okay, 2 3 minutes. Just wait.
Hello, all of you. Welcome, all of you. Today, our topic is Introduction to Web3. Okay, so this is a very interesting topic. Like we are living in the world of internet today. Okay, so this is the most interesting topic that we got for the webinar. That is Web 3.0. Okay, so we will see what are the other versions. Like there is also one Web point 1.0, then 2.0, then now there is a 3.0. So we'll see in further. Okay, yeah. So let's start. Okay, so as I told you, this session will be on the introduction to Web3. So this will be only the introductory part, not in the deep, or not all the deep parts like the what are the blockchain and that all things, but we'll see only regarding the introduction part, like what is Web3 and what are the different versions of Web. Okay, so that you can start with the Web3. Okay, so just this is the beginner friendly webinar. Okay, so do you know there are the different types of Web3, like the www3 www.com, like you use that like domain, that is www dot any website and then .com. So for example, if we take www.google.com, so that is a website. So that www is known as World Wide Web. Okay, and this also known as the internet. Okay, so the internet has the different versions. Okay, let's see. So before starting, let's know about myself. So my name is Atharva Shinde and I'm a BSc Computer Science student. Okay, and of BK Birla Night College, that is in Mumbai. Okay, so I'm interested in teaching and I explore new concept of computer science daily. Okay, then I taught more than 100 plus students in the last 2 months nowadays. So there are like more students for me. Okay, so let's start. Yeah. So let's see the history of Web3. Okay, so as I told you earlier, like we can't live without the internet nowadays, right? Everything is on the internet, in the internet. Okay, like anything we want, we just go on the Google and we just search anything, and we get everything related to that query. Okay, so that is all about the internet only. Okay, you are browsing your social media using your social media handles. That can be like Instagram, Twitter, Facebook, any social media app. So that all comes in the Web 3, or we can also call them as the internet. Okay, so there are three types of versions nowadays. So in earlier there was Web 1.0. Okay, the static web. We'll see in detail also about this all. Okay, so then we came across to the Web 2.0, the social web. We can also see that like nowadays we are on the social web, right? We are on the 2.0, but अभी जो धीरे धीरे हम लोग 2024 25 26 में हम लोग जब बढ़ेंगे आगे ईयर में, तो तभी हम लोग को थोड़ा सा शिफ्ट दिखेगा कि हम लोग वेब 2.0 से वेब 3.0 पे जा रहे हैं. Okay, so then the web 3 is the decentralized web. Nowadays all the things are centralized. Okay, so what is the mean by centralized and decentralized? If you don't know this, the mean by what is centralized and decentralized is, centralized means is the, like for example we take a example of social media app. Okay, for example let's take a example of WhatsApp. Okay, so if we see about WhatsApp, so WhatsApp has every data about us. Okay, our contact history, our chats, okay, our images, storage data, everything. The company has every detail regarding us. Okay, so that is known as centralized. What like in detail, if I tell you, so लाइक दी व्हाट आई कैन से, सो जो आपका जो डेटा है उसका ओनर कोई और है. ठीक है, आप खुद नहीं है. ठीक है, जो यूजर का डेटा है उसका ओनर कोई और थर्ड पार्टी है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल, अपना जो ओनर है वो व्हाट्सएप है या फिर व्हाट्सएप मेटा जो कंपनी है वो है. ठीक है, अपना जो डेटा है सारा मैनेज क्या कर रहा है वो कर रहा है. उसको जब चाहिए वो डिलीट कर सकता है, जब चाहिए आपको बैन कर सकता है. ठीक है, जब चाहिए आपका डेटा लीक कर सकता है, उसके ऊपर है. ठीक है, तो ये क्या है,
एक सेंट्रलाइज वे, हम लोग के पास अपने खुद के डेटा का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वेब थ्री में या फिर डिसेंट्रलाइज वेब में जाएंगे तो वहां पे ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। पूरा डेटा का जो ये रहेगा, लाइक सिक्योरिटी वगैरह जो रहेगा वो सब अपने हाथ में रहेगा, कब अपनों को चाहिए किसी और को दिखाना है वो अपने पास है, ठीक है। अपना डेटा का कंट्रोल अपने हाथ में रहेगा, ठीक है। तो ये एक मेन रोल होता है डिसेंट्रलाइज वेब का। ओके, सो देखते हैं अपन और डिटेल में। ओके, सो द वेब वन और द वेब 1.0, द स्टैटिक वेब। ओके, सो देयर इज द वन ऑन वन कनेक्शन, लाइक एक यूजर है, उसका कनेक्शन आपका इंटरनेट से उसका कनेक्शन दूसरे लोग मतलब यूजर के साथ है। तो ये एक वन वे कनेक्शन है, नॉट अ टू वे कनेक्शन। टू वे कनेक्शन कहाँ था अपने वेब 2.0 में, अभी अब जो आप देख रहे हो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी मेरे से बात कर सकते हो, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे उसमें पूछ सकते हो मैसेज बॉक्स में। और वहां पे आप जब पूछोगे तो वो एक टू टू वे कनेक्शन बोल सकते हैं अपन उसको, ठीक है। तो इसको वो एक वेब 2.0 का ये है, ठीक है। लेकिन वेब 1.0 में वैसे नहीं होता था, हम लोग एक वन वे में कांटेक्ट कर सकते थे। अगर अपने को किसी फॉरेन कंट्री में किसी को कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले अपने को वो उसको अ, जो मेन कंपनी है जो आपका कॉल लगा के देगी उसको पहले अपने को बताना पड़ता था, अपना एक अपॉइंटमेंट देना पड़ता था कि मुझे ये टाइम का ये टाइम स्लॉट मुझे चाहिए। तो फिर वो कंपनी आगे जाके वो बंदे के साथ आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, तब जाके आपका बात होगी। तो ये एक स्टैटिक वेब की तरह कुछ आप बोल सकते हो कि आपके मतलब आप अभी डायनामिक सब चल रहा है, ठीक है। और आप डिलीट वगैरह सब कर सकते हो, लेकिन पहले कुछ ऐसे हो नहीं था, पहले कोई सोशल मीडिया एप्स वगैरह नहीं थे, ठीक है। तो वहां पे ये सब चीजें थी पहले के, कौन सा पहले 2000 अर्ली 2000 में, जब 1990 वाला जब देखोगे तब आपके मम्मी पापा के पास आप अगर पूछोगे तो उनके उनको अगर आप पूछोगे कि ये व्हाट्सएप वगैरह क्या है उनको पता नहीं है। अगर उनके उनके जमाने की चीजें पूछोगे जैसे yahoo.com है, अगर उनको ये पूछोगे yahoo.com क्या था आपको पता है क्या कुछ, जिनको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा पता है उनको अगर पूछोगे तो वो बता देंगे कि हाँ हमारे टाइम पे yahoo.com बहुत चलता था, लेकिन अभी कौन सा चलता है, गूगल.com बहुत चलता है, राइट। तो ये ऐसा एक शिफ्ट हुआ था 1.0 से 2.0 धीरे धीरे। तो ये एकदम फटाक से नहीं होता है, थोड़ा साल लगता है, like there is a little years between that shift, okay, like we go one by one, okay, not in the like एक साथ नहीं जाते हम लोग पूरे वेब 2.0 में। पहले हम लोग के पास स्टैटिक कंटेंट था, सिर्फ स्टैटिक कंटेंट एक ही बार चेंज कर सकते थे हम लोग, बार बार उसको अगर चेंज करना पड़ता था तो अपने को नया नया कुछ बनाना पड़ता था। अगर एक वेबसाइट है, आपको पता रहेगा जो भी वेब डेवलपमेंट में उसको पता रहेगा कि स्टैटिक कंटेंट और डायनेमिक कंटेंट क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो स्टैटिक कंटेंट को अगर आपको चेंज करना है तो आपको बार बार वो चीज बनानी पड़ती थी। लेकिन डायनामिकली अगर है तो आप सीधा डायरेक्टली जाके वहां पे लाइक एडिट कर सकते हो। तो ये वाला कुछ डायनामिक आप अगर इसमें देखोगे एप्स में सोशल वेब का अगर बात करें तो अभी आप देखोगे तो व्हाट्सएप पे जाके आप मैसेज डिलीट भी कर सकते हो, लाइक अनसेंड भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड भी कर सकते हो, अपलोड फोटो अपलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कमेंट कमेंट कर सकते हो, कमेंट डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो ये आप बोल सकते हो ये थोड़ा डायनेमिक कंटेंट हो गया। लेकिन स्टैटिकली अगर आप कर रहे हो तो उसको अगर एक बार आपने भेजा तो वहां पे डिलीट और एडिट का कुछ ऑप्शन नहीं था, अगर भेज दिया तो भेज दिया। ऐसा आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो स्टैटिक कंटेंट का, ठीक है। लिमिटेड इंटरेक्टिविटी थी, सिर्फ अगर आपने पुराना वाला वर्जन अगर आपने यूज किया होगा, सबसे पहले वाला इंस्टाग्राम का वर्जन अगर आपने यूज किया होगा और अभी वाला अगर इंस्टाग्राम का वर्जन आप देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। बहुत इंटरेक्टिविटी डाली अभी उन्होंने, डबल टैप करो लाइक करो। तब पहले क्या कर पहले करना पड़ता था, अभी वो हार्ट वाले इसमें टैप करके सिर्फ लाइक होता था, अभी क्या डबल टैप क्या लाइक हो गया। तो ये वाला लिमिटेड इंटरेक्टिविटी पहले था 1.0 में। तो जब हम लोग शिफ्ट हुए धीरे धीरे 2.0 में, 2000 के बाद जब हम धीरे धीरे शिफ्ट हुए तो वहां पे सारे चीजें एक्स्ट्रा अपने को नए नए चीजें मिली, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला वन वे कम्युनिकेशन था, अगर मुझे आपके साथ बात करना रहेगा तो मैं पहले बात करूंगा फिर आप मेरे से बात करोगे, तो ये हुआ वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। टू वे कब होता है कि मैं भी बात कर रहा हूँ आप भी बात कर रहे हो तो वो टू वे हो गया। ओके, सो बेसिक डिजाइन होता है, अगर आपने इंस्टाग्राम का अगर पहले इंस्टाग्राम ही ले रहा हो तो इंस्टाग्राम का अगर पहले वाला वर्जन देखा होगा, बहुत पहले वाला एकदम जब नया नया लॉन्च हुआ था तभी का, तो वहां पे क्या था, बेसिक डिजाइन था, सिर्फ लाइट मोड था और पूरे ऐसे टेक्स्ट वगैरह बड़े बड़े थे और फिर थोड़ा सा बेसिक डिजाइन था। लेकिन अब अगर देखोगे सोशल वेब में अभी आप अगर अभी का लेटेस्ट वाला वर्जन देखोगे तो वहाँ पे अपने पास बहुत सारे चीजें आ गए, सेटिंग्स आ गए,
थीम आ गए, ब्लैक थीम हो गया, डार्क थीम हो गया, उसको डार्क थीम बोलते, डार्क थीम हो गया, लाइट थीम हो गया। तो ये क्या होता, जैसे जैसे इंटरनेट अपडेट हुआ वैसे वैसे एप्स ने और जो इंटरनेट है उन्होंने भी क्या किया, अपग्रेड किया खुद को। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया खुद को अपग्रेड करते गए। वैसे ही था वेब 1.0, फिर अभी चल रहा है वेब 2.0। अभी हम लोग बोल सकते हैं कि 2000 के बाद का और अभी तक वेब 2.0 पे हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन धीरे धीरे कंपनीज जो है अभी जैसे मेटा हो गया, ट्विटर हो गया, तो वो अभी वेब 3.0 में शिफ्ट हो रही है। तो वेब 2.0 क्या था, ठीक है, यूजर जनरेटेड कंटेंट आने लग गया वहां पे, जैसे ब्लॉगर डॉट कॉम हो गया। ब्लॉगर डॉट कॉम का अगर आपने अभी वेबसाइट देखा खोल के, तो अभी भी वो पुराना जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसी की तरह दिखता है। ठीक है, लेकिन अगर उसी साइड में अगर आपने वर्डप्रेस का आज खोल के देखा तो वो थोड़ा सा अपग्रेडेड दिखता है। ब्लॉगर से ज्यादा 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 इंटरेक्टिविटी आपको मिलती है, ज्यादा कोलेबोरेशन करने को आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन ब्लॉगर ब्लॉगर अगर आप देखोगे तो इतना चीजें उसके अंदर मिलती नहीं आपको ब्लॉगर में। तो ये ब्लॉगर का आप एग्जांपल ले सकते हो, आपका स्टैटिक वेब वाला, और वर्डप्रेस का आप ले सकते हो सोशल वेब वाला। तो इसकी तरह आप कंपेयर अगर करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टैटिक वेब और सोशल वेब में क्या फर्क है। ठीक है, सोशल वेब क्यों नाम दिया दिया गया, क्योंकि यहाँ पे सोशल इंटरेक्टिविटी बहुत हो गई, कोलेब्रेशन बहुत हो गया, बढ़ गया मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए उसको नाम पड़ा तो सोशल वेब करके। ठीक है, तो वहाँ पे सोशल मीडिया से लोग कनेक्ट होना चालू हो गए। फिर वहाँ पे फेसबुक अनाउंस हुआ था, फिर यूट्यूब अनाउंस हुआ था जहाँ पे लोग यूट्यूब वीडियो डालना चालू कर दिए। फिर उसके बाद ट्विटर हुआ, ट्विटर के साथ पता है आपको ट्विटर क्यों यूज होता है। उसके बाद लिंक्डइन आया, फ्लिकर वगैरह, गूगल एप्स आए सारे, गूगल वगैरह आ गया। तो वहाँ पे सोशल मीडिया की तरफ लोग बढ़ गए ज्यादा। और फिर वहाँ पे इंटरेक्टिविटी हो गई, कोलेबोरेशन हो गया। कैसे इंटरेक्टिविटी, कैसे मैंने आपको मैसेज भेजा, आप मुझे मैसेज भेज सकते हो, कनेक्शन एकदम क्लियर हो गया। पहले कैसे कनेक्शन इतना होता नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे कांटेक्ट रखना भी आसान हो गया, इसके लिए फिर उसको सोशल वेब की तरह नाम दिया गया। ओके, देन दूसरा आप देखोगे इंटरएक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, आज की अगर आप देखोगे बात, तो अगर आपको अगर इंटरएक्टिविटी चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए, अभी की अगर आप देखो अभी अपना वेबिनार चल रहा है, अगर कोई इंटरएक्टिविटी करनी है आप सी डायरेक्टली आपको मुझे आप मैसेज मतलब वहाँ पे चैट करके या फिर क्वेश्चन Q&A के अंदर क्वेश्चन डाल के आप मुझे इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोलैबोरेशन का हो गया तो गिटहब पे वगैरह आप कोलैबोरेट कर सकते हो। तो ये सारा चीजें वेब 2 में आ गई। ठीक है, तो उसका डायनामिक एंड पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आ गए। ठीक है, डायनेमिक चीजें ऐड होने लगी, डायनेमिक और पर्सनलाइज, बहुत पर्सनली आप बोल सकते हो कि बहुत पर्सनलाइज करना सीख गए हम लोग कि कैसे अगर अपने को कोई फोटो वगैरह एडिट करना है तो उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैसेज को एडिट करना है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग को मिली। उसका सोशल मीडिया एंड शेयरिंग, तो जैसे मैंने बताया अगर जैसे नाम से ही आपको पता चला सोशल वेब है, तो सोशल मीडिया एंड शेयरिंग तो हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह आ गया, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह आ गए। तो वहाँ पे सोशल मीडिया और शेयरिंग का जो ये था कॉन्सेप्ट था वो पब्लिक के पास आ गया। ठीक है, उसके बाद आज तक अभी हम लोग थोड़ा बहुत अभी हम लोग अपग्रेड हो रहे हैं टू 3.0 में। और ये वेबिनार देने के लिए इसके ये यही रीजन था कि आपको फेमिलियर पहले से कर दिया जाए कि वो क्या वेब 3 है और क्या चीजें नए नए आ रहे वेब 3 के साथ, और आप क्या क्या नई चीजें उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सोशल वेब के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं वेब 3 के बारे में जो अपना मेन टॉपिक है। ठीक है, द डिसेंट्रलाइज वेब। ठीक है, द डिसेंट्रलाइज वेब क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। पहले कैसे होती थी, सेंट्रलाइज रहती थी। मतलब पहले कैसे होता था, ये डेटा यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से एक पाथ बना हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका डेटा एक ब्लॉकचेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। मतलब एक ब्लॉकचेन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखो कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, और एग्जाम्पल देखो ब्लॉक 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 है। ठीक है, यहाँ से डेटा आपका सीधा आपके पास आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो वो एक डिसेंट्रलाइज वे की तरह है, लेकिन ओपनली है। और वहां पे आप बोल सकते हो कि जो डेटा है पूरा पब्लिकली अवेलेबल है, सब है। लेकिन आपका वहां पे जो ये है, यूजर डेटा ओनरशिप मिल रही है आपको। आप कभी भी आपका डेटा डिलीट करवा सकते हो किसी थर्ड पार्टी ऐप से। अभी आपके पास अगर अभी देखा रहेगा कि अभी बहुत सारे ऐप्स ने वो ऑप्शन डालना चालू किया है, डिलीट डेटा, लाइक डेटा का। ठीक है, मतलब अगर आपको इंस्टाग्राम का ये भी डिलीट करना होगा अकाउंट वगैरह, तो वहाँ पे भी अभी पहले क्या होता था, टेम्परेरी हम लोग क्लोज करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी उन्होंने नया ये डाला है कि हम लोग परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो। और आप किसी भी वेबसाइट में जाके किसी भी कंपनी से आप बोल सकते हो कि डेटा जो है वो डिलीट करवा दो, या फिर कुछ चेंजेस वगैरह है तो आप सीधा डायरेक्टली उनसे बात करके करवा सकते हो। तो ये
किसने प्रोवाइड किया, वेब 3 में आ गया, ये इसने प्रोवाइड किया कि जिसका डेटा है उसी वही इंचार्ज है ना, राइट है। क्योंकि अगर आपका डेटा आपके पास ही ओनरशिप नहीं रहेगी तो क्या फायदा फिर आपके डेटा का, तो फिर तो कोई यूज करने का फायदा भी नहीं है वो ऐप का, राइट। तो इसकी यही इसी के कारण डिसेंट्रलाइज वेब की भी तैयारी चालू है कि जो डेटा है जो यूजर है उसका डेटा उसी के पास रहेगा, किसी और थर्ड पार्टी के पास उसका डेटा नहीं जाएगा। एक सीक्रेट की रहेगी उसी के अंदर उसका ये होगा, ट्रांजेक्शन जो होंगे वो होंगे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन जैसे बोला अगर, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मैंने बोला पहले, अभी ये वाला जो सोशल वेब चालू है वो सब पूरा सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। पूरा जो सिस्टम पाथ बोल सकते हैं हम लोग वो पहले से डिफाइन है कि ये यहाँ से जाएगा फिर ये इधर होगा, आपका डेटा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको सेंट्रलाइज हम लोग बोल सकते हैं कि अभी सारे कंपनी ने क्या क्या सेंट्रलाइज करके रखा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि एक कोई पाथ नहीं रहता कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ भी आपका अगर आज अगर डेटा ये वाले ब्लॉक में है तो कल आपका डेटा नया डेटा यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, कल आपका नया डेटा यहाँ पे भी आ सकता है। तो वो एक डिसेंट्रलाइज्ड है और पूरा ओपन ब्लॉकचेन के अंदर पूरा आपका डेटा फैला हुआ है। तो आसानी से कोई ट्रैक नहीं कर सकता, ये एक नई चीज है, ठीक है। आपकी यूजर आइडेंटिटी जो होती है वो एक ये होती है यूजर आइडेंटिटी, इसके आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। फिर ये जो यूजर आइडेंटिटी होती है वो आपकी छुपी रहती है, ठीक है। आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा एबिलिटीज होती है कि आप आपकी यूजर आइडेंटिटी दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते। अगर आपने वीपीएन की बात कर ली तो हम लोग वीपीएन की यूज करते हैं यूजर आइडेंटिटी छुपाने के लिए, राइट। उसी की तरह तो डिसेंट्रलाइज में हम लोग को वीपीएन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास थोड़ा सा एक ये रहेगा, मतलब टोकन्स वगैरह रहेंगे, आपके की वगैरह रहेंगे, उस की से आप इंटरेक्ट कर सकते हो और आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता, वो की से ट्रैक नहीं किया जा सकता। आपका डेटा ट्रैक किया जा सकता है लेकिन आप कौन हो कैसे हो वो नहीं किया जा सकता। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में अगर पता है, क्रिप्टो करेंसी में जो आता है बिटकॉइन के बारे में, ठीक है। बिटकॉइन के जो बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और जो अभी बिटकॉइन जितने भी बने हैं उतने सारे के सारे ब्लॉकचेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है और उतने ही बन सकते हैं। कैसे? अगर किसी ने अगर उसको डुप्लीकेट करने की ट्राई की, डुप्लीकेट मतलब अभी मेरे पास है और मुझे कोई कोई बोलते हैं ना फेक करेंसी बनाना। अभी हम लोग कैसे, अगर नोट है अपना जो बैंक का नोट है, 100 रुपीज हो गया, 500 रुपीज हो गया, 1000 रुपीज हो गया, तो ये जो नोट्स है अगर हम लोग उसको डुप्लीकेट करना चाहे तो जेरोक्स करके आप कर सकते हो, लेकिन आप पकड़े जाओगे, राइट। क्योंकि उसके अंदर सारा जो वो क्या लाइन, वो जो लाइन्स वगैरह रहती है, फिर आपका जो फोटो वगैरह रहता है वो उनके अंदर जो उन्होंने डाल के रखा है, मतलब आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे वेब में, अगर वेब 3 में, डिसेंट्रलाइज वेब में, तो इसके अंदर उस चीज की मतलब कमी थी ना, राइट। ये सिक्योरिटी एक ये हो गया कि जैसे हम लोग फेक नोट्स पकड़ा जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने फेक करेंसी बना दी, लाइक बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन अभी मेरे पास 1000 है तो मुझे उसको 2000 करना है, तो डुप्लीकेट अगर कर दिया किसी ने तो उसको पकड़ा कैसे जाए। तो इसका भी उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, अपग्रेड होते जा रहा है, अभी नया नया ब्लॉकचेन, अभी वेब 3 अभी अपग्रेड होते जा रहा है, अपग्रेडिंग फेज में, ठीक है। तो आप इसके अंदर अभी घुस सकते हो, ये अच्छा मौका है, ठीक है। वापस टॉपिक में आता हूँ कि कैसे उसको पकड़ा जा सकता है, ठीक है। तो जब कोई बिटकॉइन जब है, मतलब जितना मैंने सुना और जितना मैंने स्टडी किया, मेरे जितने नॉलेज से है उतना मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर किसी ने बिटकॉइन खरीदा, अगर बाई चांस अगर मैंने बिटकॉइन जैसी करेंसी खरीदी या फिर इथेरियम जैसी करेंसी खरीदी, तो उसका मेरे पास एक यूनिक टोकन मिलता है, राइट। अगर किसी ने खरीदा होगा तो उसको पता रहेगा, मैंने कभी खरीदा नहीं है लेकिन मैंने बहुत सुना है, जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, जो क्रिप्टो करेंसी में अभी है, तो उन्होंने मुझे बताया थोड़ा बहुत। तो इसमें तो आपके पास एक थोड़ा सा आपका अकाउंट रहता है, डिजिटल अकाउंट रहता है, ठीक है। उसके अंदर आपके बिटकॉइंस वगैरह सारे स्टोर किए जाते हैं और वो भी सिक्योर्ड है, उसके अंदर भी आपके बहुत सारे सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह टू ऑथेंटिकेशन वगैरह है, जिससे आपका वो भी एप्लीकेशन या फिर आपका जो वॉलेट है वो भी हैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक अच्छा चांस है कि मतलब अच्छा रीजन है, एडवांटेज बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि आपका जो सिक्योरिटी है आपका वो हाई है इसके अंदर, ठीक है। जैसे विंडोज और लिनक्स के बीच में पहले हुआ था कि विंडोज मतलब इतना सिक्योर नहीं है जितना लिनक्स है। तो लिनक्स क्यों सिक्योर है? क्योंकि वो ओपन सोर्स है और उसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब उसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो सिक्योर है।
इसका जो विंडोज का जो डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ उसके माइक्रोसॉफ्ट के पास उसका कोड है या फिर विंडोज का जितना भी डेटा है वो उसके पास है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो सिक्योर नहीं है। तो ये आप इसकी तरह से आप देख सकते हो कि लाइक सेंट्रलाइज वेब क्यों सिक्योर नहीं है और डिसेंट्रलाइज वेब क्यों सिक्योर है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज वेब आप ओपन सोर्स एप्लीकेशन की तरह या फिर लिनक्स की तरह ले सकते हो कि वो क्यों सिक्योर है, ठीक है। आपको पता रहेगा कि लिनक्स क्यों सिक्योर है, कैसे सिक्योर है, ठीक है। तो उसी की तरह कुछ ये ब्लॉकचेन वगैरह काम करता है और डिसेंट्रलाइज वेब भी काम करता है, ठीक है। तो जब आपके यूनिक टोकन मिलता है और वो यूनिक टोकन जो है आपके ब्लॉकचेन पे बन जाता है, ठीक है, एक ब्लॉक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। और वो जब ब्लॉक ऐड होता है तो वो सबके सिस्टम में, जिसके भी सिस्टम में वो ब्लॉकचेन कनेक्टेड है या फिर जो भी ब्लॉकचेन पे कनेक्टेड है बेसिकली, उसके सिस्टम पे वो दिखाएगा कि अच्छा इसने खरीदा अभी ये बिटकॉइन, इसने ये बिटकॉइन खरीदा, ऐसे डायरेक्टली जितने भी यूजर्स है उनके सबके इसमें चला जाएगा। तो ये क्या है कि अगर किसी ने फेक करने की ट्राई की तो वो डिटेक्ट हो जाता है फटक से, ठीक है, क्योंकि वो किसी और के पास नहीं जा रहा ना, वो इन्फॉर्मेशन, वो मैसेज किसी और को नहीं जा रहा कि इसने खरीदा करके, सिर्फ आपको दिखा रहा है कि मैंने खरीदा। तो वो डायरेक्टली वहां से ट्रैक किया जा सकता है कि अगर इसमें नहीं दिखा रहा है लेकिन इसमें दिखा रहा है तो वो फेक है, ठीक है। तो ये एक ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कुछ Q&A में लूंगा बाद में थोड़ी देर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर जाते हैं कि वेब 3 और वेब 2 में क्या फर्क है, ठीक है। आप यहाँ पे पॉइंट्स दे सकते हो, एक्सपेक्ट्स देख सकते हो, ठीक है, क्या क्या है। पहले देखा जाए तो पहले आप देखोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या है। अगर वेब 3 और वेब 2 में हम लोग ये करें, कंपैरिजन करें, तो आपका जो आर्किटेक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर विद डेटा एंड एप स्प्रेड अक्रॉस नोड्स। तो आपका जो डेटा है, जैसे मैंने बोला, ब्लॉकचेन है तो नाम के ऊपर से पता चल रहा है ब्लॉक का चेन है, ठीक है, एक ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक से उसका चेन है, ठीक है। आपने अगर लिंक लिस्ट पढ़ा हो डेटा स्ट्रक्चर्स में, लिंक लिस्ट तो कैसे होता है, वो लिंक लिस्ट होती है जो एक दूसरे से लिंक रहती है और उसके पास कुछ नोड्स रहते हैं और वो लिंक का डेटा रहता है, नोड रहता है, इसकी तरह सेम ब्लॉकचेन भी उसी की तरह ब्लॉक रहता है, उसका नोड रहता है, ठीक है। तो आपका जो डेटा है, आर्किटेक्चर है आपका डेटा का, वो क्या होता है, आपका जो डेटा एंड एप्स जो है सारे के सारे आपके नोड्स के साथ स्प्रेड है, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रलाइज में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स 2.0 में क्या होता है, आपको जो डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड है, क्या करता है वो कंट्रोल बाय सेंट्रल एंटिटी। सेंट्रल एंटिटीज हम कैसे ले सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटा का लूँ या फिर व्हाट्सएप का लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप का अगर मैं इन वेब 2.0 में अगर मैं व्हाट्सएप का ये लूँ, तो इसका जो सेंट्रल एंटिटी है वो कौन है, मेटा है, मेटा.com, ठीक है। जो मार्क जुकरबर्ग भैया है हमारे, वो है, ठीक है, सेंट्रल एंटिटी हमारे, उनके पास हमारा पूरा डेटा का कंट्रोल है। वो चाहे तो लीक भी कर सकते हैं, वो चाहे डिलीट कर सकते हैं, वो चाहे हमें बैन कर सकते हैं, उनके हाथ में, ठीक है। हम लोग, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड। और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का पूरा सिस्टम हमारे हाथ में होता है। हम जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं, हमारा डेटा कैसे भी चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक एडवांटेज होता है वेब 3 का। उसका डेटा ओनरशिप सेम जैसे मैंने बोला, ठीक है, हमारा डेटा का ओनरशिप हमारे हाथ में रहता है, किसी और थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं रहता, ठीक है। यूजर ओन एंड कंट्रोल देयर ओन डेटा एंड हेनेंस प्राइवेसी। सो आपकी प्राइवेसी मेंटेन होती है इससे, ठीक है। आपका प्राइवेसी अभी है ही नहीं, जीरो प्राइवेसी है, ठीक है। आपका डेटा गूगल के पास है, मेटा के पास है, हर एक कंपनी जो है इंटरकनेक्टेड है और सारा डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग कंपनीज के साथ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो आप एड्स का देख सकते हो, एड्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आपके मोबाइल में आपके एड्स आते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे एड्स आते हैं, फेसबुक में एड्स आते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं आते, रील्स में इंस्टाग्राम पे वगैरह आते हैं। तो वो कैसे पर्सनलाइज है, ठीक है। अगर आपने अभी कुछ सर्च किया गूगल पे तो वहां पे वही एड दिखा रहा है, तो वो कैसे सेंट्रलाइज्ड है, आपका डेटा इंटरली कनेक्टेड है, तो फटाक से वो एड जो है वो वहां पे पॉपअप हो गया कि हाँ इसने अभी ये सर्च किया तो ये इसको जरूरत है तो मैं ये एड दिखा दिया। तो ये कैसे हो रहा है, आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके लिए। लेकिन वेब 3 में ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। फिर आपका डेटा जो है आपके हाथ में होता है सारा, ठीक है। इंटरेक्टिविटी देखते हैं, इंटरेक्टिविटी कैसे क्या होती है, ठीक है। यूजर्स एंगेज बाय डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, डी एप्स हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डी एप्स, ठीक है, एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अभी जैसे हमारे हाथ में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे वेब 3 में अपने पास क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स होती है, ठीक है, कुछ डी एप्स होती है जिसके तरह हम लोग उस जिससे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिससे हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, हम लोग अगेन वहां से हम लोग एंगेज कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है।
इंटरेक्शन प्राइमरी विद सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। अभी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स क्या हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे बोला, ये सारे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्टिविटी भी आपके हाथ में है कि कैसे सारी डिसेंट्रलाइज है, तो आपका वहाँ पे भी प्राइवेसी सिक्योरिटी मेंटेन है। ठीक है, उसका ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी पे जाए तो ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड थ्रू ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो आपका जो अगर मेन मोटिव देखोगे, डिसेंट्रलाइजेशन का मेन मोटिव क्या है कि वो एक ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, वो एक क्रिप्टोग्राफी बेस्ड पैटर्न यूज कर रहा है, या फिर एल्गोरिदम हम बोल सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम यूज कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी है, मतलब सिक्योरिटी प्राइवेसी एकदम 100% है आपके हाथ में, तो एकदम मतलब एडवांटेज यूजर्स के हाथ में। ठीक है, लेकिन सॉरी, यहाँ पर आप वेब 2.0 में देखोगे तो वेब 2.0 में क्या हो रहा है कि आपका जो सेंट्रल एंटिटीज है उनके ऊपर हमको रिलाई करना पड़ रहा है कि हाँ हमको ट्रस्ट है नहीं, मेरे को तो है नहीं, लेकिन हमको एक ऐसे करना पड़ता है कि ट्रस्ट दिखाना पड़ता है कि हाँ चलो ये लोग के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और ये कोई डेटा हमारा लीक नहीं करेंगे या फिर सिक्योर रखेंगे करके। ऐसा हम लोग को रिलाई करना पड़ता है कि हाँ थर्ड पार्टी है, व्हाट्सएप है, तो मुझे थोड़ा सा भरोसा है कि हाँ नहीं करेगा कुछ मेरे डेटा के साथ। ठीक है, तो ये हम लोग को थर्ड पार्टी एप्स के ऊपर या फिर सेंट्रल एंटिटीज के ऊपर रिलाई करने को मजबूर करता है। लेकिन यहाँ पे आपका आपका ट्रस्ट किसके ऊपर है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है आपके आंखों के सामने है, जो भी है सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा, कोई भी अगर डेटा यहाँ से वहां जा रहा है तो आपके सामने होगा, आपको हर एक नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ मेरा डेटा भी इधर से इधर गया, इधर से उधर गया, आपका सारा डेटा आपको दिखेगा। ऐसे होता है। ठीक है, फिर ब्लॉकचेन है, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम यूज हो रहा है, सारा ये सारा सिस्टम है। तो ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी 100% है। यहाँ पे आपको गारंटी है उस चीज की। ठीक है, मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप गारंटी दे सकते हैं कि मेरा डेटा जो है वो सिक्योर है। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई गारंटी नहीं दे सकते कि मेरा डेटा सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है, कल को किसी हैकर ने व्हाट्सएप को हैक किया तो सबका डेटा लीक हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का मतलब गारंटी नहीं है ना कि कल कोई भी उठ के उसको हैक कर ले तो हमारा डेटा मतलब ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे वेब 3 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी लोग। ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे इंक्रीमेंट इसका 2021 से स्टार्ट हुआ है, कोविड आया था तो सब घर में बैठ गए थे। ठीक है, तो तब से 21 से लेके 22, 21, 22 के आसपास, तब से लेके 2024 तक इसका अगर ग्राफ देखोगे, अभी इसके अंदर मैंने ग्राफ डाला नहीं, डालना चाहिए था। अगर आप यहाँ पे वेबिनार के बाद अगर आप देखोगे या फिर अगर आपको चाहिए मैं सर्च करके आपको बाद में दिखा दूंगा, कोई क्वेश्चन पूछ लेना मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप 21 का और 2021 से लेकर 24 तक का ग्राफ देखोगे वेब 3 का, तो वो बढ़ते जा रहे हैं ऊपर, धीरे धीरे उसके ऊपर इंक्रीमेंट किए जा रही है। बहुत सारे कंपनीज अभी उसके अंदर घुस रही है, लाइक मेटा हो गया, मेटा खुद भी अभी मेटावर्स बना रहा है खुद का, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, मेटावर्स क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड ही है, राइट। उसके बाद ट्विटर है, ट्विटर भी घुस रहा है अभी AR वगैरह में, तो वो भी आपका डिसेंट्रलाइज के ऊपर ही काम करता है सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका धीरे धीरे अभी जो है वो डिसेंट्रलाइज के ऊपर मूव हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग गारंटी नहीं दे सकते कि अपना डेटा फिर भी अपने हाथ में रहेगा कि नहीं। ठीक है, मैं तो नहीं दे सकता आपका गारंटी कि डिसेंट्रलाइजेशन में अगर तो उसका मतलब ही नहीं है कि वो अगर आपका डेटा का आपके हाथ में अगर ये नहीं है की नहीं है कि मतलब आप मैनेज कर सकते हो कि नहीं, तो आपको वहाँ पे वो डिसेंट्रलाइज बोला ही नहीं जाएगा। जब तक आपके हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं आता तब तक आप उसको डिसेंट्रलाइज बोल ही नहीं सकते। तो अभी वो कंपनी धीरे धीरे उसके ऊपर काम कर रही है, सारी कंपनी अभी धीरे धीरे उसके ऊपर इंक्रीमेंट कर रही है, धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज को छोड़ के बाकी सारी चीजों पे वो काम कर रही है, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन छोड़कर, डेटा ओनरशिप छोड़ के, बाकी इंटरेक्टिविटी, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी हो गया, पर्सनलाइजेशन हो गया, कोलेब्रेशन हो गया, इनोवेशन हो गया, यूजर कंट्रोल, फ्यूचर पोटेंशियल, ये तो अलग बात है। इतना सब कुछ ये जो है उसके ऊपर कंपनियां काम कर रही है, लेकिन डेटा ओनरशिप भी अभी तक उनके हाथ में ही है। ठीक है, तो जब तक डेटा ओनरशिप अपने हाथ में नहीं आती तब तक अपन उसको डिसेंट्रलाइज वेब नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब डिसेंट्रलाइज वेब में हम लोग धीरे धीरे मूव ऑन हो रहे हैं। और जब ये सारा चीजें हो जाएगा तो कंपनी वाले ये भी हम लोग को दे ही देंगे, ऐसा कुछ इतना ये नहीं है उनको। ठीक है, तो ये है वेब 3 का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस तो मुझे इतने दिखते नहीं है कुछ, लेकिन है हर एक के एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कहाँ पे थे, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी में थे। तो अभी हम लोग देखते हैं पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन में क्या क्या आता है आपके हाथ में, आपके पास क्या है, टेरर एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन यूजर ऑन डेटा। आपका जो एक्सपीरियंस है आपका डेटा के साथ आपका एक्सपीरियंस बन रहा है।
लेकिन पर्सनलाइजेशन ड्रिवन बाय द प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम है उसके ऊपर आपका डेटा काम कर, मतलब आपका डेटा यूजर के या फिर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के अनुसार काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका रील है, रील आपने अपलोड किया है, लेकिन वो ऐप डिसाइड कर रहा है कि वो वायरल होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये तो यूजर, मतलब ये तो ये है नहीं, पर्सनलाइजेशन है नहीं, राइट। तो ये हो रहा है वेब 2 में। वेब 3 में क्या होगा, आपके डेटा, आपका जो रील है उसी, वही रील उन्हीं टारगेट ऑडियंस के पास जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका पर्सनलाइज एक्सपीरियंस यूजर ओन डेटा, ऑन यूजर ओन डेटा। ठीक है, तो आप इसकी चीज आप देख सकते हो, अभी धीरे धीरे इंस्टाग्राम उसके ऊपर भी मूव ऑन हो रहा है। पर्सनलाइजेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें उसने की है इंस्टाग्राम ने। अगर आप देखोगे, सॉरी, अगर आप देखोगे 2022 का या फिर 22 का, 2022 का अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम, और 2023 और 2024 का अगर आप इंस्टाग्राम अभी का अपडेट्स देखोगे, तो उसमें सारे आपको वेब 3 के थोड़े बहुत अ, गुण मिलेंगे कि हाँ उन्होंने कुछ तो किया है वेब 3 के लिए भी। ठीक है, तो उसके बाद कोलेब्रेशन बढ़ जाता है आपका, इंटर ऑपरेटेबिलिटी मिलती है, अनेबल्स क्रॉस प्लेटफॉर्म कोलेब्रेशन, आपके साथ डायरेक्टली क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरेक्शन हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, कोलेब्रेशन मेनली कन्फाइड विद इन द इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, देखो, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म से सारे चीजों में आप कोलैबोरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी आप इसके अंदर आप ये ले सकते हो कि कोई एक वेबसाइट है या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर है जिससे अंदर आप लिंक्डइन भी ये कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका ट्विटर, ये सारे चार चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो और चारों जगह पे आप एक साथ पोस्ट कर सकते हो। तो ये चीज इसके अंदर मिलती है आपको, क्या, इंटरऑपरेटिबिलिटी एनेबल्स क्रॉस प्लेटफॉर्म कोलैबोरेशन, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म कोलैबोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप आप बोल सकते हो। ठीक है, और कोलैबोरेशन मेनली कंफाइड विद इन द इंडिविजुअल एप्स, मतलब अगर इंस्टाग्राम देखोगे तो इंस्टाग्राम के रील्स सिर्फ इंस्टाग्राम के डलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंस्टाग्राम के रील्स फेसबुक में भी डल रहे हैं अभी, तो वो मेटा के जरिए, तो मेटा क्या है, मेटा डिसेंट्रलाइज है, राइट। तो वो, इसके लिए मैंने बोला कि अभी मेटा भी है और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह है, तो वो धीरे धीरे वेब 3 के अंदर मूव ऑन हो रहे हैं। पहले क्या होता था, रील्स जब नया नया आया था तो सिर्फ पहले इंस्टाग्राम पे अपलोड होता था, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, फेसबुक में भी अपलोड आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे अपलोड हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इंटर ऑपरेटेबिलिटी मिल रही है आपको, क्या, कि इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक में भी ऑटोमेटिकली अपलोड हो रहा है। तो ये क्या है, वेब 3 का गोल है, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि कंपनी धीरे धीरे अभी उसके ऊपर मूव ऑन हो रही है। ठीक है, तो आपको और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी से आप इसके अंदर घुल मिलने चालू करो। तो जब लाइक क्या बोलते हैं, वो मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको जब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो आप उसके अंदर जा सकते हो। ठीक है, मतलब उस जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलेंगी। ठीक है, अभी भी मिल रही है, आगे भी मिलेंगी। तो अभी सब लोग काम करना चालू करेंगे वेब 3 के ऊपर, थोड़ा सा नॉलेज लेना चालू करेंगे, तो वहां पे आप क्या है, अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहां पे आप जा सकते हो। ठीक है, ऐसा ऐसा भी आप ये भी आप अभी से करना चालू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वेब 3 के साथ साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आपको, मिल भी रही है, बेसिकली अभी चालू हो ही गया है, तो मिल भी रही है। AI और ML में अगर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे चीजें हैं, वहां पे भी आप देख सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में आपको बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको इंडिया में तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आउट ऑफ कंट्री आपको बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी आपको कुछ जॉब्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो इंडिया में तो मुझे दिखता नहीं कि कोई डिसेंट्रलाइज के ऊपर काम कर रहा है, वेब 3 के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आउटसाइड के जो कंट्रीज है, उनके जो नए नए स्टार्टअप्स है, उन्होंने काम करना चालू किया है वेब 3 के ऊपर, और बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स आ चुके हैं वेब 3 के ऊपर। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कौन कौन से हैं, तो वो आप देख सकते हो। चाइना को आप ले सकते हो, चाइना अभी वेब 3 के अंदर जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसका 2.0 तो बहुत कंप्लीट हो चुका है। चाइना बहुत ही डेवलप्ड कंपनी कंट्री है, सॉरी कंपनी नहीं, कंट्री है। तो उसका मैं तो बोल सकता कि उसका वेब 2.0 का पूरा काम हो ही गया है। तो अभी वो धीरे धीरे अभी वेब 3 पे मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर आप वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो तो वहाँ पे आपको वेब 3 की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, फॉर श्योर। ओके, सो कहाँ गए थे हम लोग, कोलेब्रेशन में थे। उसके बाद इनोवेशन देखते हैं, इनोवेशन बहुत न्यू न्यू इनोवेशन आएंगे। किस चीज के इनोवेशन, डिसेंट्रलाइज फॉरेस्ट इनोवेशन इन ऐप क्रिएशन, बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे जो डिसेंट्रलाइज के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आएंगे, बहुत सारे वेबसाइट रहेंगे जो डिसेंट्रलाइज वे में काम कर रही है।
लेकिन इनोवेशन वेब 2 में कैसे होता था, इनोवेशन लिमिटेड बाय प्लेटफॉर्म रूल्स एंड सेंट्रलाइजेशन। अभी आपको कोई ऐप बनाया आपने, ठीक है, अभी उसको अपलोड करना है तो आपको प्ले स्टोर में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक क्या है, एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको रिलाई करना पड़ा, तो वो क्या अगेन सेंट्रलाइजेशन के अंदर आ जाता है कि उसको उसके ऊपर आपको रिलाई करना पड़ रहा है कि हाँ मैं अगर अपलोड कर रहा हूँ तो वो कुछ कमीशन आपको देगा, ठीक है। तो ये क्या है, इनोवेशन के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या हो सकता है, आप डिसेंट्रलाइज जाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, खुद का वेबसाइट खोलो, उसके ऊपर आप आपका ऐप जो है वो डाउनलोड के लिए लगाओ। आपने अगर देखा रहेगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर, पीसी के सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारे इनके लाइक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अवेलेबल ही नहीं है, उनके खुद के ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। तो ये एक आपका डिसेंट्रलाइज का पार्ट हो सकता है, ठीक है, इनोवेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद यूजर कंट्रोल में आ जाते हैं अपन। यूजर कंट्रोल ओवर देयर डेटा एंड इंटरेक्शन, अब वापिस वही डेटा का ओनरशिप का आ गया। यूजर कंट्रोल, जहां जहां यूजर कंट्रोल था डेटा ओनरशिप का बात आ जाती है, ठीक है। तो यूजर का खुद के डेटा के ऊपर कंट्रोल है, इंटरेक्शन कर सकते हो खुद के डेटा के साथ, कभी भी जाके आप देख सकते हो कि मेरा डेटा में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। अभी अगर इसका एक एग्जांपल दूं, इंस्टाग्राम पे यूजर डेटा कंट्रोल का अगर एग्जांपल दूं, अभी अगर आप नए इंस्टाग्राम पे जाओगे, अभी मतलब नए मतलब अपडेटेड जो अभी लेटेस्ट वर्जन है उसका पर आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप देखोगे उन्होंने जो है वो सेटिंग्स पूरे चेंज कर दिया है। अकाउंट सेंटर एक कर दिया जिससे सारे अकाउंट्स एक साथ आपके कनेक्ट हो गए, सारे डेटा आपका एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये क्या है, यूजर कंट्रोल बढ़ा रहा है, इंटरेक्शन बढ़ा रहा है, राइट। आप एक ही चीज से अकाउंट सेंटर, जो उन्होंने नया नाम दिया है उसको, अकाउंट सेंटर से बेसिकली आप सारे जितने भी अकाउंट्स है इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, सारा एक ही साथ एडजस्ट कर सकते हो। एक ही साथ अगर एक अकाउंट में कनेक्टेड है सारे आपके डेटा, एक अकाउंट में आपने नाम चेंज किया तो सारे अकाउंट में नाम चेंज हो गया। तो ये क्या हो रहा है, यूजर कंट्रोल मिल रहा है पे डेटा पे और इंटरेक्शन पे। तो यही चीज मैंने बोली कि मेटा जैसी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी अभी धीरे धीरे इसके ऊपर, डिसेंट्रलाइज के ऊपर काम कर रही है। तो इसके ऊपर आपको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वेब 3 के ऊपर किसी को ज्यादा इतना पता नहीं है, ठीक है। इंडिया में ऑलमोस्ट किसी को पता नहीं है वेब 3 के ऊपर, वेब 3 क्या है। जो क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा डीप इन्वॉल्व है उनको पता है वेब 3 क्या है, ठीक है। आपके अगर कोई दोस्त वगैरह रहेंगे जो बिटकॉइन वगैरह खरीदते होंगे या फिर ट्रेडिंग करते होंगे क्रिप्टो करेंसी में, तो उनको पता रहेगा कि वेब 3 क्या है, कैसा क्या होता है। उनको भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपको यही सब बताएगा वो भी जो मैंने अभी बताया, ठीक है। उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर पोटेंशियल पोटेंशियल की बात ही नहीं आती क्योंकि वेब 3 है तो नेक्स्ट वर्जन है तो उसको आना ही है और वो आएगा, ठीक है। मतलब फ्यूचर पोटेंशियल तो वास्ट है इसका, ठीक है। जैसे वेब 2 के अंदर बहुत सारे इनोवेशन हुए थे। मैं इंस्टाग्राम था, इंस्टाग्राम लाइक बहुत ये हो गया था, फेमस हो गया था। फिर फेसबुक फेमस, बीच में फेसबुक था, फिर इंस्टाग्राम फेमस हो गया क्योंकि इंस्टाग्राम ने लाइक लाके, मतलब वो जो मार्क भैया थे उन्होंने इंस्टाग्राम खरीद के पूरा उसको चेंज कर दिया, तो वो इंस्टाग्राम बूम पे चला गया, फेसबुक को थोड़ा डाउन आ गया। लेकिन फिर अभी उन्होंने एक साथ लाने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लिया। तो ये भी एक डिसेंट्रलाइज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फ्यूचर पोटेंशियल है इसमें, ठीक है। क्या है, लाइक इनोवेशन, सॉरी, इनविजन्स सॉरी इनविजन्स अ मोर यूजर सेंट्रिक इंटरनेट विद एप्लीकेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो यूजर सेंट्रिक इंटरनेट रहेगा, ठीक है, मतलब सारा यूजर से यूजर डायरेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, यूजर टू कंपनी रहेगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन रहेगा। और यूजर के पास खुद का लाइक ये रहेगा, कंट्रोल रहेगा सारी चीजों का। कंपनी सिर्फ क्या करेगी, उसको सर्विस प्रोवाइड करेगी। जैसे अभी इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम आपको क्या करेगा, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा बस। उसके अंदर का सारा मामला है, उसके अंदर का सारा डेटा है, आपके चैट्स है वगैरह, उसका उसका जो ये रहेगा, कंट्रोल रहेगा आपके ऊपर रहेगा। आपको जब चाहिए आप आपका अकाउंट डिलीट कर सकते हो, आप जब चाहिए आपका डाउनलोड डेटा जो वो डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप देख सकते हो वहाँ पे। अभी आप पहले नहीं था ये, मैं अभी देखा था थोड़ी दिन पहले जो नया अपडेट हुआ था, उसके बाद ये जो अकाउंट सेंटर आया था, तभी मैंने ये नया नोटिस किया कि आप जब इंस्टाग्राम के सेटिंग्स में जाओगे और वहां पे देखोगे, तो जो नया अकाउंट सेंटर है उसके अंदर एक सेक्शन मिलेगा, अगर आप क्रिएटर अकाउंटर में हो तो वहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसमें लिखा है कि योर एप्स एंड मीडिया, ऐसा कुछ है। अभी मेरे को क्लियरली याद नहीं आ रहा है। तो उसके अंदर जब आप देखोगे तो वहां पे अर्चिविंग और डाउनलोडिंग का ऑप्शन आता है। तो वहां पे वो भी आपको बता रहे हैं कि आप अगर कोई डेटा है वो आप मतलब सेव करना है कि नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो, पहले भी था, लाइक फोटो अपलोड कर रहे हो डायरेक्टली आपके
गैलरी में सेव होता था, राइट? फ्लोट फोटो अपलोड किया तो डायरेक्टली गैलरी में सेव हो रहा है। लेकिन फिर वो क्या होता था कि डबल डबल फोटोज आ जाते थे, तो वहां पे आप उसको अनेबल और डिसेबल कर दो। पहले नहीं होता था अनेबल डिसेबल, अभी उसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हो कि अगर आपको चाहिए तो ही वो सेव होगा, नहीं चाहिए तो नहीं सेव होगा। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि यूजर कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद बहुत सारी नई चीजें जो आप आपका डेटा जो है वो डाउनलोड करा सकते हो। आपके इंस्टाग्राम को बता सकते हो कि मुझे डाउनलोड करके दिखाओ कि क्या क्या आपके पास है, तो आप उसको बोल सकते हो कि डाउनलोड योर डेटा, मतलब उधर ऑप्शन है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आपके क्या है, अभी इंस्टाग्राम में यूजर कंट्रोल आपको धीरे धीरे देना चालू कर दिया है। ठीक है, और वहां पे आपका क्रिएट अकाउंट डिलीट अकाउंट का भी ऑप्शन आ गया, डिलीट कर सकते हो डायरेक्ट, लाइक पूरा डिटेल डिलीट कर सकते हो अकाउंट। व्हाट्सएप पे अगर आप देखोगे व्हाट्सएप कैसे डिसेंट्रलाइज हो रहा है, अगर आप देखोगे व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन बढ़ गया है, कोलेब्रेशन बढ़ गया है। कैसे? कम्युनिटीज उन्होंने लॉन्च की, कनेक्ट चैनल्स लॉन्च की, तो ये सारा क्या कोलेब्रेशन का चीज हो गया। ठीक है, चैनल से हम लोग कोलेबरेट कर सकते हैं, कम्युनिटीज बना के हम लोग एक सारे जो ग्रुप्स थे उसको सेंट्रलाइज डिसेंट्रल मतलब सेंट्रलाइज कर सकते हैं, और एक ही जगह पे उसको हम लोग डाल सकते हैं सारे ग्रुप्स को। ठीक है, एक टॉपिक के रिलेटेड अगर एक कोई टॉपिक है गेम्स का, तो उसके अंदर सारे गेम्स के रिलेटेड फोल्डर, जैसे हम लोग फोल्डर्स बनाते हैं गेम्स के रिलेटेड, तो वैसे ही आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कम्युनिटी बना गेम्स नाम के, उसके अंदर सारे गेम्स के रिलेटेड आपके ग्रुप्स आ जाएंगे। तो ये आपका कोलैबोरेशन के लिए भी हेल्प करता है, यूजर इंटरेक्शन के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, कहीं अगर आपको कोई ग्रुप अगर फटक से मिल नहीं रहा है आपके इसमें, तो आप डायरेक्टली कम्युनिटी टैब में जाके आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन हो गया, इन लाइक नया इनोवेशन भी है, राइट? यूजर कंट्रोल है, कोलैबोरेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप व्हाट्सएप में भी देख सकते हो कि व्हाट्सएप भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। और अगर आप डेटा ओनरशिप की बात करें तो आपके पास अभी उन्होंने नया स्विच अकाउंट्स का सिस्टम डाला है, जिससे आप मल्टीपल लाइक लॉगिन आप कर सकते हो, दो नंबर एक साथ लॉगिन कर सकते हो। अभी उन्होंने सिर्फ दो ही डाला है कि दो ही आप कर सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर अभी उन लोग, मेरे को तो लगता है कि इन फ्यूचर अभी उन लोग और डालेंगे कि 3 टू, जैसे इंस्टाग्राम पे आप 3 4 अकाउंट एक साथ डाल सकते हैं। पहले वहां पे भी वैसे ही हुआ करता था, तब एक ही बार में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते थे और एक ही अकाउंट यूज करना पड़ता, दूसरा करना पड़ता तो साइन आउट करके दूसरा यूज करो। लेकिन अभी उन्होंने क्या डाला है कि आप एक ही व्हाट्सएप में दो अकाउंट यूज कर सकते हो, मतलब दो नंबर यूज कर सकते हो। तो ये एक आपका पर्सनलाइजेशन हो गया, यूजर कंट्रोल हो गया। ठीक है, उसका प्राइवेसी के लिए उन्होंने नई चीजें डाली, सिक्योरिटी के लिए उन्होंने डाली। तो ये एक कुछ आप देख सकते हो कि जो कंपनीज है अभी 2024 में, 2023 में, ये सारी चीजें 2024 में आई है, 2023 में नहीं थी, राइट? दिसंबर जैसी गया, दिसंबर जनवरी में ये सारी चीजें अपडेट हुई। ठीक है, जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सारे अपडेट्स चालू हो गए, राइट? जैसे जैसे 2023 से 2024 में हम लोग मूव ऑन हो गए, वैसे वैसे उन्होंने फटाक से अपडेट लाना चालू कर दिया और सारी चीजें चेंजेस करना चालू किए, राइट? तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो कंपनीज अभी डिसेंट्रलाइज होने के लिए मूव ऑन हो रही है और वेब 3 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपके पास बहुत सारी न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है। ठीक है, अभी ये तो सारा हो गया वेब 3 के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं कि यूज केसेस क्या है इस चीज के। ठीक है, एक सेकंड। ओके, एक सेकंड ना। Okay, so let's see what are the use cases of Web3, like where you can use the Web3 most. Okay, और कहाँ आप देख सकते हो Web3 ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, आपके IoT एप्लीकेशंस जो है वहां पे आप देख सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, आपके जो IoT एप्लीकेशंस है, जैसे आपके जितने भी स्मार्ट होम है, स्मार्ट होम बेसिकली एक वर्ड है, और स्मार्ट होम के अंदर आपके क्या क्या आ जाता है, एलेक्सा आ गया, आपके स्मार्ट लाइट हो गई, स्मार्ट फैन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, लाइक ये चीजें क्या बनाती है, IoT की चीजें, राइट? तो ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज चेन में काम कर रही है। ठीक है, तो ये IoT क्या है, डायरेक्ट डिवाइस कम्युनिकेशन हो रहा है कि आप आपके मोबाइल से आपका जो लाइट है वो भी चेंज, मतलब वो भी एडजस्ट कर सकते हो, फैन का स्पीड वगैरह कम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, AC का, लाइक AC है तो उसका आप टेम्परेचर बढ़ा या कम कर सकते हो। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट डिवाइस कम्युनिकेशन है। लाइक आप पहले आपको रिमोट से यूज करना पड़ता था, लेकिन आपका एक ही सिंगल डिवाइस से आपके सिर्फ मोबाइल से सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट मेन मेन पार्ट हो गया मोबाइल। ये जो मोबाइल है, PC है, लैपटॉप है, एक ये मेन पार्ट हो गया आपके डिसेंट्रलाइजेशन के या फिर Web 3 के। ठीक है, क्या आप सिर्फ एक उनका क्या है कि आप सिर्फ एक डिवाइस से सारी चीजें कर सको। ठीक है,
तो धीरे धीरे आप देखो कि जो पहले सिर्फ कंप्यूटर से होता था वो अभी मोबाइल से भी हो रहा है। ठीक है, जो पहले सिर्फ मोबाइल से होता था वो भी कंप्यूटर से भी हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि वो लोग अभी धीरे धीरे डायरेक्ट डिवाइस कम्युनिकेशन ला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी भी आपको मिलती है। ठीक है, आईओटी के अंदर फिर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया। जैसे मैंने बोला डी एप्स होता है, डिसेंट्रलाइज एप्स होते हैं, वैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गए। क्या इसका क्या मतलब होता है? आपके अभी जो क्रिप्टो करेंसी का मैंने एग्जांपल दिया, बिटकॉइन का एग्जांपल दिया, जो अभी जो बिटकॉइंस वगैरह चल रहे हैं, तो बिटकॉइंस क्या आपकी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ रहा है? नहीं। क्या आपकी डायरेक्टली आप लाइक आपका फॉर एग्जाम्पल कोटक महिंद्रा का बैंक अकाउंट है, तो क्या वो डायरेक्टली आपका क्रिप्टो करेंसी कोटक महिंद्रा के अकाउंट में दिखा रहा है या उसके ऐप में दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। उसके खुद के कुछ एप्स है, डिसेंट्रलाइज एप्स है, जिसके अंदर ही आप लॉग इन करोगे, जिसके अंदर आपका वॉलेट बनेगा। वॉलेट के अंदर आपके जो करेंसीज है वो दिखेंगे। तो DEFI करके हम लोग उसको बोलते हैं, डी फी करके वो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस करके हम लोग उसको बुला सकते हैं। ठीक है, ये एक सेक्टर हो गया। ये सारे सेक्टर्स हो गए। ठीक है, सेक्टर्स मतलब एरियाज हो गए। ठीक है, जिसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन अभी ज्यादा काम में आ रहा है। ठीक है, डिजिटल आइडेंटिटी के अंदर भी काम आ रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन सिक्योर होने के लिए, सेल्फ आइडेंटिटी मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो रही है, आपका आइडेंटिटी के आपके हाथ में, लाइक वीपीएन वगैरह आप बोल सकते हो, तो उसके अंदर आप आपका आइडेंटिटी हाइड भी कर सकते हो वीपीएन लगा के। तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन के पार्ट है। वीपीएन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है। ठीक है। और फाइनेंस का अगर बात करूँ तो डायरेक्ट फाइनेंस सर्विस मिल रहा है विदाउट इंटरमीडिएटरीज। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके जो सेंट्रल आपका जो फाइनेंस है वो अभी जो है सेंट्रलाइज है। अभी हम लोग का जो फाइनेंस चाल है वेब 2.0 में, वो सेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर काम कर रहा है। सेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर कैसे काम करता है? आपका एक बैंक है। ठीक है, आपका एक अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट में आप डालोगे पैसे, फिर वो बैंक के पास जाए, मतलब सॉरी, मतलब आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से फिर बैंक आपके अकाउंट से पैसे निकाल के आपको देगा। तो ये क्या, बैंक जो है वो एक इंटरमीडिएटरी है। राइट, मतलब एक आपका एक सेंट्रल आइडेंटिटी बोल सकते हैं आप उसको, सेंट्रल एंटिटी बोल सकते हैं आप, कि बैंक जो है वो सेंट्रल एंटिटी आपके अकाउंट और आपके बीच में। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ऐसा कुछ नहीं है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आपके पास कोई बैंक नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप आपका अकाउंट विड्रॉ कर सकते हो, अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, डायरेक्टली आप आपका अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये आपका विदाउट इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है, डायरेक्ट फाइनेंस सर्विसेज विदाउट इंटरमीडिएटरी। आपको जब चाहिए आप विड्रॉ कर सकते हो, आपको जब चाहिए तब आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब आप देख सकते हो, सेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब आप पता चल गया रहेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अभी जो चीजें है वो डिसेंट्रलाइज में काम कर होने चालू हो रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आपको पता रहेगा या फिर आपने कहीं न्यूज में वगैरह सुना रहेगा, तो बाहर के देशों में अभी उन्होंने क्या किया है, बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है। अगर आपको किसी को पता रहेगा तो, कि बाहर के कंट्रीज में लाइक डिसेंट्रलाइज कॉइन्स को, सॉरी नॉट डिसेंट्रलाइज कॉइन्स, सॉरी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है। दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, there are lots of other currencies also. They started like accepting them. So most of the used currency is that Bitcoin, and next is your Ethereum. Okay, so Ethereum ज्यादा कोई लेता नहीं है, लेकिन Bitcoin अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो उन्होंने बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन चालू कर दिए। आप अभी कोई डिसेंट्रलाइज वेबसाइट देखोगे तो वहां पे आपको डिसेंट्रलाइज लाइक सॉरी आपका क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करने का भी ऑप्शन आपको दिख जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर काम कर रही है, या फिर दो वेबसाइट, या फिर जो कंपनी डिसेंट्रलाइज्ड है उसके अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका लाइक चालू हो गया है, धीरे धीरे हो रहा है। आईओटी के अंदर आपको डिसेंट्रलाइज मिल रहा है, डिजिटल आइडेंटिटी आपकी सिक्योर रह रही है, उसके बाद आपके पास आपका मैनेजमेंट है, आइडेंटिटी का मैनेजमेंट है। ठीक है, किसी को आपकी आइडेंटिटी दिखती नहीं है। अभी क्या है, आपका इंस्टाग्राम के आपका प्रोफाइल बना दिया आपने। ठीक है, मैं कोई अनजान हूँ, अगर पब्लिक प्रोफाइल है तो मैं कोई अनजान हूँ, तो मैं आपको फोटो देख सकता हूँ, मैं आपकी नाम पढ़ सकता हूँ, मैं आपका फोटो देख सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ उसके अंदर। तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो पब्लिकली अवेलेबल है अभी। लेकिन डिजिटल आइडेंटिटी में क्या होता है, आप आपका अकाउंट प्राइवेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसको आप लोग बोल सकते हो डिजिटल आइडेंटिटी सिक्योर है। मतलब आपने अगर आईडी आपका प्राइवेट कर ली, तो मैं जब आपको फॉलो करूंगा तभी आप मेरे को वो सारी डिटेल्स आपकी दिखेगी। मतलब आप मतलब आपका कोई अकाउंट
अकाउंट प्राइवेट है तो मुझे आपका सिर्फ प्रोफाइल दिखेगा और मुझे उसको बताएगा, वो बताएगा कि सब्सक्राइब करो या फिर फॉलो करो, तभी मुझे आपकी डेटा दिखेगा। तो यहाँ पे आपका डिजिटल आइडेंटिटी सिक्योर रहता है, थोड़ा मैनेजमेंट मिलता है। तो अभी इंस्टाग्राम वो तो कर पहले से प्रोवाइड कर रहा है कि पब्लिक अकाउंट प्राइवेट अकाउंट आपके हाथ में है, ठीक है, क्या करना है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वहां पे भी ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग वेब 3 प्रोजेक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स के अंदर। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स है वो अभी चल रहे हैं ज्यादा ट्रेंड में, ठीक है, वेब 3 के अंदर, या फिर जो प्रोजेक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स है जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो मेन जो है वो आपका इथेरियम ब्लॉकचेन है। सारा का सारा आपका जो ब्लॉकचेन है वो इथेरियम से बना हुआ है, ठीक है। इथेरियम एक प्लेटफॉर्म है दैट enables क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रल एप्लीकेशंस एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, revolutioning the industries like finance, gaming and more। ठीक है। आपका जो मेटावर्स है, ठीक है, मेटावर्स क्या है, आपका डिसेंट्रलाइज्ड या फिर आपका इथेरियम ब्लॉकचेन के, सॉरी, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या, गेमिंग के अंदर आ गया आपका मेटावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिटकॉइन क्या हो गया आपका फाइनेंस के अंदर आ गया। तो ये सारा जो इथेरियम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। क्या अनेबल कर रहा है वो, डिसेंट्रल एप्लीकेशन बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है कि इसके अंदर आप डिसेंट्रल प्लेटफॉर्म बना सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा अभी जो लोग ज्यादातर जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, डिसेंट्रल एप्लीकेशन बना रहे हैं, ब्लॉकचेन जो यूज कर रहे हैं, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो यूज कर रहे हैं, ज्यादातर इथेरियम ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सोलिडिटी, अगर आपको पता है, अगर आपको एक्सप्लोर करना आप कर सकते हो। इथेरियम ब्लॉकचेन है, उसके अंदर आपको सोलिडिटी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ठीक है, C++ की तरह आप बोल सकते हो उसको। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है। पहले आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी, अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक C++, रस्ट के ऊपर अगर आपको थोड़ा सा ये है एक्सपीरियंस है, तो आप सोलिडिटी करके एक लैंग्वेज है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो सोलिडिटी करके एप्लीकेशन है। एक सेकेंड, या सो जो सोलिडिटी लैंग्वेज है वो डायरेक्टली आपकी जो बेसिकली मैं अगर आपको छोटा सा इन लाइक इंट्रोडक्शन दूं उसका, सोलिडिटी का, तो उसके अंदर वो क्या है, एक स्टैटिकली टाइप कर्ली ब्रेसेस वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है, ठीक है। सोलिडी जो मोस्टली उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस रहते हैं, ठीक है, और इथेरियम के ऊपर वर्क करती है, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं सोलिडिटी लैंग्वेज। आपका जैसे जावा है, जैसे पाइथन है, वैसे एक लैंग्वेज है सोलिडिटी करके, ठीक है। तो वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ओपन सोर्स है, उसका रिपोजिटरी आपको मिल जाएगा गिटहब पे सोलिडिटी का। उसके अंदर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है सोलिडिटी के अंदर तो आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। उसके बाद बहुत मस्त है, आपको देखना चाहिए। मैंने एक बार ट्राई किया था, लेकिन मैंने इतना डीप में नहीं गया था उसके अंदर, लेकिन मैंने ट्राई किया था सोलिडिटी। ओके, सो उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बेसिकली आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पढ़ना पड़ता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, सारी की सारी ब्लॉकचेन की चीजें जो है, डिसेंट्रलाइजेशन की जो चीजें आपको आनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके अंदर। तो ये सारा उसके अंदर आपको करना चाहिए। तो एक ब्लॉकचेन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन जो है, एक पूरा का पूरा एक वास्ट ये है, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए। तो आपको अगर मैं तो रिकमेंड करूंगा आप मूव करो उसके अंदर, आप एक्सप्लोर करो इथेरियम क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है, सोलिडिटी क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, वो सारा चीजें आप देखना चालू करो, ठीक है। उसके बाद फाइल कॉइन करके एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट फाइल कॉइन नाउ। ओके, सो फाइल कॉइन इज टाइप ऑफ लाइक इट इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज प्लेटफॉर्म बेसिकली, जो डिसेंट्रलाइज वे में काम करती है। और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपका जो स्पेस है, आपका जो लैपटॉप का या फिर आपके कंप्यूटर का जो स्पेस है, आप सेल कर सकते हो किसी भी यूजर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो आपके पास अभी 1 TB का हार्ड डिस्क है, लेकिन आपने सिर्फ 100 GB का ही स्पेस उसके अंदर यूज किया है, और बाकी का जो स्पेस है वो खाली पड़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, फाइल कॉइन में आके उसको रेंट आउट कर सकते हो आपके स्टोरेज को, ठीक है। उसका अलग से सिस्टम है, आप जाके वो देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी, लेकिन इसके लिए मैंने इसके अंदर डाली है, प्रोजेक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स के अंदर इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि मुझे भी पता चला कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अपना स्टोरेज भी हम किसी को सेल कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको गूगल ड्राइव को पे कर रहे हैं,
ठीक है, एक्स्ट्रा वेब की मतलब स्टोरेज की है। जैसे वो प्रोवाइड कर रहा है 15 GB, अगर एक्सक्लूड हो गई तो हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं 1 TB तक की स्टोरेज के लिए पेमेंट करके। तो उसी की तरह एक फाइल कॉइन करके एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आपका स्टोरेज जो है, फिजिकल स्टोरेज जो है वो आप कर सकते हो, क्लाउड स्टोरेज नहीं। आपका गूगल ड्राइव जो है वो क्लाउड स्टोरेज पे, और यहाँ पे आपका क्लाउड स्टोरेज नहीं, आपको जो लैपटॉप का या फिर पीसी का जो अनयूज्ड स्टोरेज है वो आप रेंट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी रिटर्न में आप ले सकते हो, उसके बदले में आप बिटकॉइन वगैरह चार्ज कर सकते हो कि इतने स्टोरेज के लिए इतना बिटकॉइन, वो आपके ऊपर है, आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो फाइल कॉइन करके। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ब्रेव ब्राउजर। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड, सॉरी नॉट अ क्रोम ब्राउजर, सॉरी डिसेंट्रलाइज्ड ब्राउजर आप बोल सकते हो इसको, अ प्राइवेसी फोकस्ड वेब ब्राउजर दैट इंटीग्रेट्स ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी टू रिवॉर्ड यूजर फॉर विविंग एड्स एंड कंटेंट। ठीक है, अभी अगर आपने वेब ब्रेव ब्राउजर यूज किया होगा या यूज करते हो तो आपको पता रहेगा कि वो एक प्राइवेसी फोकस्ड वेब ब्राउजर है। ठीक है, उसके अंदर आपकी प्राइवेसी की 100% गारंटी दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद वो जो ब्राउजर है वो क्या पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, उसका उस वो आपको रिटर्न में भी दे रहा है। आप अगर वो यूज कर रहे हो, ब्रो ब्राउजर अगर आप यूज करोगे तो वो क्या कर रहा है, आप अगर वहां पे एड्स और कंटेंट आप देखोगे, अगर आप उसके अंदर कोई ब्राउजिंग करोगे, अगर ब्रेव ब्राउजर आप यूज कर रहे हो और आपने कोई एग्जाम लाइक फॉर एग्जांपल कोई चीज सर्च की और उसके अंदर आपने कोई वेबसाइट खोली, तो वो कंटेंट रीड करने के लिए या फिर उसके ऊपर जो एड्स दिख रहा है आपको, उसके लिए भी आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, ब्रेव ब्राउजर के अंदर तो क्रिप्टो करेंसी मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। ठीक है, तो ब्रेव ब्राउजर भी एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप के अंदर आ जाता है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, और आपका डेटा के ऊपर आपका हाथ है, आपके ऊपर है कि आपको एड देखने हैं कि नहीं देखने, इट्स अपॉन यू। आप उसको ब्लॉक एड कर सकते हो, ब्लॉक ऐड करोगे तो आपको एक 0% एड्स दिखेंगी। ब्रेव ब्राउजर की कुछ खुद की कुछ रहेंगी तो वो दिखेगी, लेकिन बाकी के जो एड्स रहेंगी वो सारी हट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन भी है क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड करने का, मतलब लेने का। आपको रिवॉर्ड मिलता है क्रिप्टो करेंसी, तो एक नॉट अ प्रमोशन बट यस यू हैव ऑप्शन, तो यू कैन लुक फॉरवर्ड दिस। ओके, सो अभी हम लोग आए कंक्लूजन के अंदर। ओके, सो क्या क्या देखा हम लोग ने, देखा वेब 3, वेब 2.0, वेब 1.0 के बारे में देखा। ठीक है, उल्टा गया मैं, हम लोग ने पहले देखा वेब 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0। ठीक है, और अभी जो चल रहा है 3.0, लेकिन 4.0 का कुछ आता पता नहीं है अभी तक। तो अच्छे से 3.0 में जाते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वर्जन की बात करेंगे। वापिस मिलेंगे नेक्स्ट वर्जन के साथ, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वर्जन के साथ। ठीक है, होप सो जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक वेब 4.0 आ जाए और मैं एक वेबिनार ले लूँ उसके ऊपर भी। ठीक है, तो ये था 3.0 के ऊपर। और इसमें हम लोग ने देखा, हिस्ट्री देखी थोड़ी सी, वेब 1.0 क्या डिटेल इंट्रोडक्शन ही था, इसके लिए मैं थोड़ा डीप में नहीं गया। ठीक है, डीप में मैंने सिर्फ वेब 3 के बारे में गया, लेकिन बाकी के जो वर्जन थे इसके लिए थोड़ा सा डीप में नहीं गया, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लग रहा था मुझे। बहुत सारे जनों को पता नहीं रहेगा क्या है चीज, ये सारी चीजें, तो उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरह रखना था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वेबिनार रखा। ठीक है, अगर आपको चाहिए इन डिटेल तो आप कांटेक्ट कर सकते हो जो होस्ट है उनके साथ। ठीक है, और उनको बोलो कि आपको डिटेल में चाहिए वेब 3 के बारे में, तो पर्टिकुलर वेब 3 के बारे में मैं वेबिनार लाऊंगा, अगर उन्होंने मुझे बोला तो मैं लाऊंगा। ठीक है, तो सॉरी। ठीक है, तो आते हैं कंक्लूजन के अंदर। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, हिस्ट्री देखी वर्ल्ड वाइड वेब की, फिर वेब 3 क्या है, यूज केसेस देखे वेब 3 के, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स देखे वेब 3 के। ठीक है, सो बेसिकली वेब 3 क्या है, वेब 3 इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन सिमेंटिक वेब वेर एवरीथिंग इज कंट्रोलिंग यूजर्स। ये इन शॉर्ट आप बोल सकते हो वेब 3 के बारे में, इन शॉर्ट। ठीक है, एक लाइन, एक दो तीन लाइन, एक दो लाइन के अंदर आप किसी को अगर बताना चाहो वेब 3 क्या है, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि वेब 3 क्या है। वेब 3 बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सिमेंटिक वेब के ऊपर काम करता है, और जहाँ पे वेब 3 के अंदर आपको पूरा कंट्रोल मिलता है आपके डेटा पर। ठीक है, यूजर को पूरा कंट्रोल मिलता है आपके डेटा पर। तो ये है वेब 3। ठीक है, लेट्स मूव। ठीक है, ये था आपका लाइक पूरा वेबिनार। अभी लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चनरी। ठीक है, तो लेट मी चेक। So if you have any doubts, you can ask inside the Q&A tab.
So yeah, I guess okay. So yeah, there are lots of questions. Okay, so go one by one. Can we find the video on YouTube? Uh, I don't know, like they upload it on YouTube or not. Let's see. Okay, because internet is slow. Can you like explain it more? Like what are the things? Okay. Okay. I guess YouTube पे like they are asking like YouTube पे upload होगा कि can you please talk a little lower? Okay, sorry. I didn't check all these things. So sorry. Okay. So please speak in English. Okay, English please. Okay. Then, sir, we are students from Andhra. Can you please speak in English? Okay. So I didn't saw this. Sorry for this, guys. Okay, I didn't saw this. So the host might me told me like, okay, it's fine. Okay, hello sir. I have a question. We are making sites using WordPress, Weebly and Blogger customization sites by online. Then it's kind sites to acceptable or not by company, or like we have to use the front end and back end create the sites according of on which one have more privacy. Please justify. Okay, so this is related to web development. Okay, I will try to answer this. I will set it to priority. Okay, I will answer this. Just let's see if there are more. If Web3 is beneficial for users or the company. Web3 is beneficial for users. Okay, I can give guarantee that Web3 is beneficial for users, not company. कंपनी के लिए भी है और यूजर्स के लिए भी है खुद की लाइक उसकी अलग अलग चीजें लाइक दी थिंग्स आर डिफरेंट फॉर यूजर्स एंड एज वेल एज दी कंपनीज ओके so if I tell you why beneficial for user, the most main thing that is benefited from Web3 that is user control on the data. Okay, so this is the main thing that I can see that is beneficial for any user. That is the control over his own data. Okay, so yeah, this is beneficial for users also as well as companies also. Like for companies I cannot like directly tell how this is beneficial for company, but yeah, for user it is beneficial. Okay, so and next, if I take are there specific technologies or protocols associated with Web3 that should be aware of? Yes, like I answered, like I pin about the Solidity language. So you need to learn about Solidity language if you want to create a decentralized application for website, sorry, web app, or basically software or mobile app. So you need to know about Solidity language and other different languages like programming languages जो हम लोग use करते हैं like Java, Python, C, C++. Okay, then that also you need to know, and as well as in a plus you need to know about the Solidity language as well as the Ethereum blockchain because Ethereum blockchain is the most widely used blockchain nowadays. So I will recommend it. I will recommend it. So if you are want to create any project upon Web3 or decentralization, so you can use the Ethereum blockchain and you can use the Solidity language. And there are smart contracts. There are lots of things basically. Okay, just like the programming languages, like for example in Java, there are lots of things like data structures and all. So in that also in the Web3 also you need to learn about lots of things. Okay, so yeah, how this is decentralized. What like Web3 decentralized because it is using the web blockchain. So we are not talking about blockchain. So I didn't go deep in the blockchain because blockchain itself is a vast subject. So I didn't touch the blockchain. I given the little introduction to blockchain like blocks and the nodes. Okay, so if you want a detailed webinar on this also, you can give a feedback about that. Okay, then let's see Brave browser. Yeah, Brave browser. Yes, like 8 o'clock. Yes, Brave browser is also the decentralized application. Why? Because it is related to sorry, it is not related to. It is developed in the blockchain with the blockchain technology.
So it comes directly comes into the decentralization, as well as you have a direct control over your over your browser as well as your data. Okay, inside the browser. I used Brave browser, so I know. So that is also the Brave browser is a trending project that is in the Web3. Okay, which software you are using for screen recording? Okay, so not answering these, we get a PPT and recording of this video. Uh, yeah, you will get a recording, I guess, because this video is recorded, like the webinar is recorded, so you might get the recording of this. Okay, or if you want a PPT, then you can directly contact me. I am the founder of Tech Congress. If you know me, most of the people are there in my community also. I can see that. So you can directly contact me. Okay, I also take, I'm an online tutor and I take like webinars and courses. So my course is going on like like the course is on web development, front end web development, basically related to front end web development. So that is a fully free course. So you can contact me for that also. Uh, Okay, so contact detail I will share later. So you can contact me for that also. And I also take personal 1v1 lectures. So if you want to learn Java, Python, or web development, any web technology basically, front end, back end. So you can directly contact me. We can schedule a 1v1 lectures where I teach you regarding your subject. Okay, so you can contact me. Okay, I will sure give you the, if I get a permission, I will share my contact details. Okay, so then is there any chances for Web 4.0? Okay, so now I don't see any chance for Web 4.0, but there will be like the Web 3 also has some disadvantages. Okay, for sure, like every advantage has a disadvantage also, like for sorry, every software has an advantage as well as disadvantage also. Every technology has an advantage as well as a disadvantage. So Web 3 also has some disadvantages. So I'm not talking about the disadvantages of Web 3. You can Google it and you can explore the world of Web 3, and you can also get familiar with the disadvantages of Web 3. And for overcoming the disadvantages of Web 3, there can be Web 4, but there is a lot of time for that. I can assume that for Web 4, there are more, still there will be something 15 to 20 years. I can assume that because now we are shifting on Web 3.0. We are not fully upgraded to Web 3.0. That's why we still want more time to get developed in Web 3.0. So I can assume that we can take, or we should take more than 20 plus years for Web 4.0. Okay, so I guess, I hope so. We will live till that. Okay, this generation lives till that. Okay, good explanation. Thank you. Thank you so much. Like for the feedbacks. Okay, sound problem. Provide the video on YouTube. Okay, the Web3 is blockchain based technology. So how can we fix the bug and Web3 websites after it host? So see, there is other different technologies. Like okay, so you are creating a web. This is not a part like if you are creating a application in centralized also. If you are creating a website, you can also edit the code, right? So in the day, blockchain also you can edit the code basically, right? You can update like we use version controlling like GitHub and Git for controlling our version. So there are, you can also GitHub also used for version control for decentralized applications. So you can go, if I show you Solidity GitHub, sorry, array. If I show you Solidity GitHub, so there is a GitHub page for Solidity, official page of Solidity language. So this is a programming language for the Web3, the Solidity contract oriented programming language. Okay, so see, so GitHub is used for version controlling. So you can update your code
after the host of your application, the applications. Okay, so there is no question. I guess there will be this question is like useless. Like you can fix the bugs after the hosting, after your apps are hosted or not. Okay, so this is the programming language that is used. So this is the basic syntax. Okay, just it looks similar something like C++ plus plus or Java. Okay, so you can shift if you know Java or C++, plus plus, so you can shift on that. So you need to know about voting, binding option, shift, remote purchase, macro payment channel. Okay, they have also their personalized documentation. You can also read their docs. Okay, and there are lots of things that you can explore. Okay, so also you can contribute. Okay, see 518 contributions are there. You can also contribute on this. Okay, so see the things. Okay, see 2015 and then see the 2021. So there is a contributions are high. This is related to contribution, not the Web3, but you can see the people are contributing. See, after 2015, or we can say after 2014, people started contributing on Solidity. See, so there is a boom, and 2023, 2024 is little less. I don't know why, but yeah, so people are contributing high. So he contributed the most. 9,019 commits are there. So he committed the most on this. So you can see. So you can also contribute on this Solidity. So like this, you can control your like projects on GitHub. Okay. So but you can also fix bugs. So Navodaya is which area you so okay. Nowadays, okay, sorry. Nowadays, in which area use Web3 in India, and in which company it is used in India? It is beneficial for us to learn on how to grab opportunity in Web3. Okay, so I will for sure answer this. Okay, just I told you the examples of Instagram and WhatsApp. So Meta. So you can see that Meta. If you go on the official website, that is Meta. Okay, the metaverse company, the social metaverse company. So this Meta is related to the decentralization. Okay, so this company is related to the decentralization. So Meta is the company which is moving forward to the Web3. And what are the parts of Meta? Your WhatsApp, your Instagram, your Facebook are the parts of Meta. So all these applications are moving towards the Web3. See, technologies, if you want to see technologies, there are also their own technologies. MetaQuest, shop devices, MetaQuest. So they have new MetaQuest VR headset. Okay, so this is related to metaverse. So metaverse also related to the decentralization. Okay, metaverse comes in the decentralization. So this is the part of this is the part of the decentralization or Web3. So companies are moving to Web3, and for sure you need to move forward on Web3, and you should learn about Web3. Okay, and you should start exploring Web3 from now, and you can for sure get opportunities on Web3. Okay, then which application? Okay, just ignore. Session certificate available or not? Yes, it is available. Then would you provide a set? Yeah, it is available. Certificate available. Then how to join our community? Okay, I will tell you. Then how to share your contact? Sir, share your yes, I will share your contact where I can contact you. Thank you, sir. Okay, thank you for connecting to this webinar. Let's come towards the end now, and you can contact me on what where I can show you. Okay, let's open the notepad. In the notepad, I will write. Okay, this is my contact number. Okay, this is my WhatsApp contact number, and this is my email ID. Okay, you can contact me from here. This is my WhatsApp number and calling number as well. Okay, so for sure you can contact me from here. Okay, as well as you can contact me on this also. I'm mostly active on this number, so you can contact me on this. I will recommend you to contact me on this. Okay, just take a screenshot or just take a note down. Okay, and from here you can contact me. Okay,
This is the main phone number that I used. So you can give the priority for this number. Okay. Okay, done. So let's move. Okay. Any more questions? Yeah, welcome, welcome. Any more questions you can ask? I'm waiting. Any more questions? Any more doubts regarding to Web3 or anything related to today's webinar? You can ask. Okay. And kindly share the feedback. All of you kindly share the feedback about the webinars. Okay. I will be appreciate. I will really appreciate the webinars. Sorry. I really appreciate the feedbacks for the webinar. Okay. Uh, yeah. Then let's stop here now. Okay. Let me stop my shares screen share. Okay. Yeah. So yeah, kindly share this feedback and let's stop here. We can stop here now. Okay. Have a good day. Have a good night. Okay. Bye bye.